Hello and welcome back. Today in this video, I'm going to talk about orthodontics. And in the orthodontics, I'll be mainly dealing with preventive orthodontics. So, what is orthodontics? I think you have learned something about this. If you are a final year student, then you have gone through the introduction of this orthodontics. But if you didn't have got that much time, then I would like to tell you about orthodontics, that it's a branch of dentistry in which we mainly deal with the abnormalities of malocclusion as well as of the dentofacial area. So whatever the abnormalities which are related with dentofacial area, or you can say uh, any malocclusion if there is present, then that thing will be uh, discussed, and that branch is called as orthodontics. In the orthodontics, we have many branches, that is preventive, interceptive, and corrective. Or that's the simplest definition that I told you. But if we go through the proper book definition, then it says it's the preventive, interceptive, or corrective. मतलब up type of manner, मतलब हम किस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं माउल ओक्लूजन को, या फिर इंटरसेप्टिव क्या कर सकते हैं, या फिर उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो यही इसकी ब्रांचेस हैं. तो हम प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है. देयर आर द प्रोसीजर्स अंडरटेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम ना हो, वैसे प्रोसीजर्स जो होते हैं दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स. फिर आता है इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स, जिसका मतलब होता है प्रोसीजर्स अंडरटेकन व्हेन द मालोक्लूजन हैज़ और इज इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन. जब मालोक्लूजन हो जाता है या फिर हो रहा होता है, प्रोसेस में चल रहा होता है, तब जो हम प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं वो इंटरसेप्टिव होते हैं. और करेक्टिव का क्या मतलब होता है, वो प्रोसीजर जो दैट आर अंडरटेकन आफ्टर द मालोक्लूजन इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, तो एस्टैब्लिश हो चुका है पहले से ही, उसके बाद जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए, दैट कम अंडर द करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स. सो आफ्टर दिस, why we need for the preventive malocclusion. So we need for more physiologic or natural approach. Not all developed malocclusions are fully treatable, but many of them are preventable. सभी के सभी malocclusions ठीक नहीं हो सकते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब लेटर स्टेजेस पे बिल्कुल नहीं ठीक हो सकते. तो बेटर ये होता है कि आप उनको प्रिवेंट करो. रिड्यूस्ड फाइनल ट्रीटमेंट टाइम और फाइनल ट्रीटमेंट लेस कॉम्प्लेक्स. और क्या होता है कि जो हमारा फाइनल ट्रीटमेंट टाइम, मतलब अगर किसी को मालोक्लूजन हो गया है, उसके बाद अगर वो उसको ट्रीट करता है तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है. तो अगर हमें अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, देन गो फॉर रिड्यूस फाइनल ट्रीटमेंट टाइम और फाइनल treatment less complex. After that, we have improved form, function, and aesthetics, which enhance the quality of life. Of एक obvious बात है कि अगर आपका occlusion better हो, तो then you will be having a good aesthetics. आपके aesthetics बहुत अच्छे होंगे, function properly हो रहा होगा, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. तो हर कोई चाहता है कि उसको प्रॉब्लम ना आए, उसके aesthetics अच्छे रहें. तो इसलिए भी प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स ज़रूरी है. रिड्यूस ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ को होने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आगे जाके उसको जो ट्रीटमेंट होगा उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी. साथ में डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ TMD. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स which shows that why we need preventive orthodontics. After that, we have some of the reasons. Okay. So actually I missed a pick. So we can go for the third reason, that why preventive and interceptive orthodontics is important. Okay, so the third reason for P&I orthodontics, that is preventive and interpretive orthodontics, is that more can be done with arches and teeth in the mixed dentition through successful expansion and utilizing the extra space allowed by the greater tooth mass of the deciduous posterior teeth. So, one second. Okay, so what this reason explains to us is that more can be done with the arches and the teeth in a mixed dentition. जब क्या होता है कि जब हमारी मिक्स डेंटिशन पीरियड चल रहा होता है,
ठीक है, जब हमारे मुंह में डेसिडुअस और परमानेंट दोनों होते हैं, मतलब डेसिडुअस जा रहे होते हैं, परमानेंट आ रहे होते हैं, उस टाइम पे हम काफ़ी मतलब वी कैन डू मोर विद आवर आर्चेस एंड टीथ, मतलब हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। उस टाइम पर हमारे पास बहुत सारा स्पेस होता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा स्पेस। क्योंकि क्या होता है कि डेसिडुअस मतलब जैसे कुछ दांत निकल गए, ठीक है, तो स्पेस बन गया, अब फिर परमानेंट इरप्ट करेंगे, तो वी हैव द स्पेस। सो more can be done with the arches and the teeth in the mixed dentition through successive expansion and utilizing the extra space allowed by the greater tooth mass of deciduous posterior teeth. Deciduous posterior teeth का साइज बड़ा होता है, ज़्यादा मास वो ज़्यादा स्पेस वो घेर के रखते हैं, तो जब वो निकलते हैं तो हम उस काफ़ी स्पेस होता है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। Okay. Next point, about 7 mm of anterior incisal crowding can be compensated, thereby eliminating the need for extraction of bicuspid in about 50% of typical orthodontic extraction cases. So what it says, one second. Okay, so this point says is that up to 7 mm of anterior incisal crowding can be compensated. मतलब क्या होता है कि बाद में क्या होता है, हमारे इंसाइजर्स जो होते हैं, एंटीरियर इंसाइजर्स, उनमें क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है। एंड और हमें उस चीज़ को ठीक कैसे करना पड़ता है, हम जो है बाइकस्पिडेटस प्रीमोलर्स उनको एलिमिनेट मतलब उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑर्थोडोंटिक केसेस में एक्सट्रैक्शन होती है प्रीमोलर्स की, ताकि जो हमारे इंटीरियर साइजेस हैं उनमें क्राउडिंग ठीक कर सकें। लेकिन अगर हम ये चीज़ इनिशियल लेवल पे करते हैं, मतलब प्रिवेंटिव या इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स अगर हम करते हैं, तो इस चीज़ को एंटीरियर इंसाइजर क्राउडिंग को हम कंपनसेट कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 7 mm तक कंपनसेट कर सकते हैं बिना एलिमिनेट करे बाइकस्पिड्स को। सो दैट इज़ वाई this approach is important, that is initial treatment approach is important. Now what are the goals to be achieved? That promote proper mastication function, reduces susceptibility to dental caries। क्या होता है, अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें, प्रिवेंटिव, इंटरसेप्टिव, या जो ये जो इनिशियल टाइप की है, प्रिवेंटिव मेनली की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि वी कैन प्रमोट प्रॉपर मैस्टिकेटिव फंक्शन। मैस्टिकेटिव फंक्शन हमारा प्रॉपर होगा, रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू केरीज, केरीज की भी ससेप्टिबिलिटी कम होगी, प्रिवेंट एबनॉर्मैलिटीज ऑफ फेशियल अपीयरेंस ऑफ डेंटल रीजन। मतलब क्या होता है कि डेंटल एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से फेशियल अपीयरेंस में एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं, तो वो भी नहीं होंगी। प्रिवेंट एक्सटेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एट लेटर एज, बाद में एज होने के बाद जब आप बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाओगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ पेडोंटल लीजन्स, ये पेडोंटल लीजन्स को भी प्रिवेंट करेगा। Prevent and eliminate abnormal respiratory function and its equally as the further dental development. So these are the goals that are to be achieved with preventive orthodontics. Now, what it includes? Preventive orthodontics का मतलब ये नहीं है कि आप डेंटल मतलब किसी सर्जन के पास जाते हो एंड यू से कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ठीक कर दीजिए, नॉट एंड इज नॉट द अप्रोच। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स एजुकेशन। लाइक हमें पेरेंट को एजुकेट करना पड़ता है कि उनका जो बच्चा है, इस एज में उसके ये वाले दांत आएंगे, इस एज में ये होगा, इस एज में उसके दांत जाएंगे, तो आपको ये केयर रखने की ज़रूरत है। सो आपको और भी बहुत चीज़ें होती हैं पेरेंट एजुकेशन में, डाइट का भी बहुत ज़्यादा, न्यूट्रिशनल मतलब सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो दैट्स द मेन थिंग, दैट इज पेरेंट एजुकेशन। नेक्स्ट द केयर फॉर डेसिडुअस डेंटिशन एंड कंट्रोल ऑफ टूथ इरप्शन। कई बार क्या होता है कि जब हमारे दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं डेसिडुअस, तो हम उनका ख्याल नहीं रखते अच्छे से, ठीक है, टूट जाते हैं कई बार वो, मतलब वी डोंट टेक मच ऑफ केयर, लाइक केरीज वगैरह हो जाती है उनमें। तो उससे क्या होता है कि बाद में परमानेंट टीथ की इरप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर जो परमानेंट टीथ इरप्ट होंगे वो उनकी पोजीशनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। केरीज कंट्रोल नहीं करते हम कई बार, ठीक है। तो प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स ये सब चीज़ें कहती है कि आप ये सब करो, केरीज को कंट्रोल करो, पेरेंट्स को एजुकेट करो, अपने डेसिडुअस टीथ की केयर करो, मैनेजमेंट ऑफ सुपरनुमरी टीथ, अगर किसी के मुंह में बहुत सारे टीथ हैं, एनकालोज्ड होते हैं, तो आप उनकी केयर करो, मैनेज करो उनको। मैनेजमेंट ऑफ एबनॉर्मल फ्रीनम अटैचमेंट, कई बार क्या होता है कि फ्रीनम मतलब जो हमारी जो फ्रीनम होती है वो एबनॉर्मल तरीके से अटैच होती है, तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको मैनेज करो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्वाड्रेंट वाइज टू शेडिंग टाइम टेबल, जो भी शेडिंग टाइम टेबल हो हर चीज़ को मैनेज करो। फंक्शन एनालिसिस एंड ओरल हैबिट चेकअप, मसल्स एक्सरसाइज, प्रिवेंशन ऑफ
मिलॉकी ब्रेस डैमेज एंड स्पेस मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स में आती हैं। फिर आती है पेरेंट की एजुकेशन। उसमें क्या क्या होता है? प्री नेटल एजुकेशन एंड अनदर वन इज पोस्ट नेटल। प्री नेटल जो मतलब बच्चा जो पैदा नहीं होता, पोस्ट नेटल जो बच्चा पैदा हो जाता है। तो अगर जो बच्चा पैदा नहीं होता तो जो मदर है उसको अपनी डाइट की, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या फिर काउंसलिंग करनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कंट्रोल ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन, जो भी मैटरनल इन्फेक्शन कंट्रोल उन पे मतलब ऐसे उनका तो ध्यान रखना चाहिए अपने बारे में कि उनको कोई इस टाइप का इन्फेक्शन ना हो, कि जैसे कि मोस्टली जो रूबेला इन्फेक्शन होता है वो मदर से फीटस में जाता है, तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज एडवाइस रिगार्डिंग ड्रग्स एंड मेडिकेशन। बहुत सारी टाइप की ड्रग्स टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। एडवाइस रिगार्डिंग एक्सपोजर टू टेरेटोजन एट द सेम थिंग, जैसे कि रिफैम्पिन हो गई, जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, तो ये सारी हार्मफुल हैं। पोस्ट नेटल एजुकेशन में आता है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल निपल्स, न्यूट्रिशनल डाइट, गुड ओरल हाइजीन ऑफ फ्लोराइड सप्लीमेंट्स। साइकोलॉजिकल निपल्स के बारे में आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमें उनको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका एक मतलब एक एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा टांग को यूज़ नहीं करती, तो केरीज की प्रॉब्लम समथिंग लाइक दैट, सो वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। देन वी हैव सम प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स इन प्री डेसिडियस पीरियड लाइक 0 to 6 month। तो उस दौरान कुछ प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। दैट इज़ वाइल फीडिंग द चाइल्ड यूजिंग फीडिंग बॉटल्स, care should be taken to see that the nipple is long enough to rest on anterior 1/3 of tongue. Opening of the nipple should be on the sides to make a child to learn to use tongue, lips and to accommodate developing incisors. So that's the difference. जो वेरी फर्स्ट फिगर है और जो दूसरी फिगर है, इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। क्या होता है कि जो फीडिंग बॉटल्स होती हैं, फीडिंग बॉटल्स को भी सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द निपल इज़ लॉन्ग इनफ। निपल जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी फीडिंग बॉटल में, काफ़ी लंबी होनी चाहिए, सो दैट टू रेस्ट ऑन द इंटीरियर 1/3 ऑफ टंग, ताकि वो इंटीरियर 1/3 ऑफ टंग तक जो है रेस्ट करे। एंड द ओपनिंग ऑफ द निपल शुड बी ऑन द साइड्स टू मेक अ चाइल्ड टू लर्न टू यूज टंग्स, लिप्स एंड टू अकोमोडेट डेवलपिंग साइजेस। उनकी अपनी साइड में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेंटर में हो। साइड्स में होगी तो बच्चा जो है लिप्स को यूज़ करना, टंग को यूज़ करना, और साथ जो उसके इंसाइजेस हैं दे ऑल्सो मतलब डेवलपिंग इंसाइजेस तुमको हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स में। दैट इज़ अगर हम नर्सिंग बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी निपल्स का ध्यान रखना पड़ता है, साइकोलॉजिकल निपल्स यूज़ करनी पड़ती हैं। फिर आता है नेटल एंड नियोनेटल। तो नेटल टीथ क्या होता है और नियोनेटल, नियोनेटल जो बर्थ के टाइम पे होता है, और जो नेटल जो विद इन 1 month। दीज स्टेज शुड नॉट बी रिमूव्ड, इनको हमें रिमूव नहीं करना चाहिए इफ़ दे आर नियर नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल होते हैं। इवन दे मे कॉज द मदर सम डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग नर्सिंग अनलेस दे आर सर्टेनली सुपरन्यूमरीज। क्या होता है कि अगर ये ठीक है टीथ, ज़्यादा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये सुपरन्यूमरी नहीं है, नॉर्मल उसमें है नंबर में, तो इनको रिमूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है केयर ऑफ डेसिडियस डेंटिशन। तो पहला था पेरेंट एजुकेशन, अब आता है डेसिडियस की डेंटिशन की, डेसिडियस डेंटिशन की केयर। तो हम कैसे कर सकते हैं? मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टूथ इरप्शन एंड शेडिंग शेड्यूल। मतलब जैसे जैसे टीथ इरप्ट होता रहता है, जैसे जैसे वो शेड करता रहता है, तो उसका एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे इरप्ट करेगा, इस टाइप पे शेड करेगा। केरीज कंट्रोल करनी चाहिए। प्रिवेंशन ट्रॉमेटिक इंजरीज, बच्चा ऐसा कोई खेल वेल ना खेले, या मतलब खेलते कूदते वक्त गिर ना जाए, जैसे कि ट्रॉमा या फ्रैक्चर ना हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ एनकलोज टूथ की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ सुपरन्यूमरी, अगर बहुत सारे ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा दांत है तो उनको आप एक्सट्रैक्ट कराइए और स्पेस को मेंटेन करिए। सबसे ज़रूरी बात होती है स्पेस मेंटेनेंस। क्या होता है कि दांत जब निकल जाते हैं वहाँ पे स्पेस बन जाता है, फिर अगर आप उस स्पेस को मेंटेन ना करो तो आसपास के दांत उस स्पेस में घुस जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो दूसरा दांत आना होता है वहाँ पे वो नहीं आ पाता। So that's why we need proper space maintenance. Now importance of deciduous teeth. Deciduous teeth की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है कि these are the excellent space maintainers, ठीक है। जो दांत निकला उसकी जगह पर दूसरा आना होता है, तो प्रॉपर स्पेस मेंटेनेंस होते हैं। ये गाइड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ की इरप्शन को गाइड करते हैं। फोनेटिक्स, एस्थेटिक्स, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तीनों चीज़ में हेल्प करते हैं। प्रॉपर फॉर्म एंड फंक्शन डिटरमाइंस हेल्थ। इनकी प्रॉपर फॉर्म और इनकी प्रॉपर फंक्शन हेल्थ को डिटरमाइन करती है।
Now what are the critical periods of evaluation of deciduous teeth? 6 months to 1, मतलब ये वो पीरियड्स हैं जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, लाइक 6 months to 1 year, 2 years of age, 3 years of age और 5 to 6 years of age. यूजुअली क्या होता है कि जो डेसिडुअस टीथ हैं वो 6 साल तक ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं, सॉरी 6 साल तक नहीं होता, इट्स अबाउट आई थिंक, बिकॉज 6 साल के बाद ये जो है टीथ शेड होने लग जाते हैं, लाइक मिक्स डेंटिशन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो भी टाइम पीरियड है, लाइक 6 month to 1 year है, या 2 years ऑफ एज है, या 3 years ऑफ एज है, या 5 to 6 years ऑफ एज है, ये सारा टाइम प्रॉपर होता है जिसमें आपको इवेलुएट करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को इवेलुएट नहीं करेंगे कि कितने टीथ हैं ओरल कैविटी में, कितने गिर चुके हैं, तो उससे क्या होगा, स्पेस मेंटेनेंस नहीं होगी। स्पेस मेंटेनेंस नहीं होगी तो जो आगे दांत आने वाले हैं उनमें प्रॉब्लम्स होगी। सिर्फ स्पेस मेंटेनेंस नहीं, केरीज एंड ऑल की वजह से भी प्रॉब्लम, पेडोंटल डिजीज हो सकती है, लेजन्स हो सकता है। नेक्स्ट इज द द टाइम ऑफ इरप्शन अलाउज इवेलुएशन ऑफ डेंटल एज, दैट इज द इवेल्युएशन डेंटल एज। तो जो टाइम ऑफ इरप्शन है उससे हमें इवेलुएट कर सकते हैं डेंटल एज को, विच कैन बी कंपेयर टू क्रोनोलॉजिक एज, ठीक है। काउंटर पार्ट टूथ शुड यूजुअली इरप्ट बिटवीन 6 months टू ईच अदर। जो काउंटर पार्ट होता है मतलब आपकी जो अपोजिंग आर्च में जो टूथ होता है, दैट शुड इरप्ट बिटवीन 6 months ऑफ ईच अदर, मतलब ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोनों में, विद इन 6 months तक आ जाना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ टूथ इरप्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइम ऑफ इरप्शन। जो सीक्वेंस होती है, जैसे कि प्रॉपर सीक्वेंस होती है डेसिडुअस टीथ में, ऐसे ही प्रॉपर सीक्वेंस होती है परमानेंट टीथ में, तो वो चीज़ इरप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताऊँ, डेसिडुअस टीथ की जो, तो उसकी सीक्वेंस होती है ABCDE, ABCDE, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक आँच जो ऊपर अपर आर्च होती है उसमें 10 दांत होते हैं, नीचे वाली आर्च में 10 दांत होते हैं। तो हमने हर आर्च को 2 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, तो हर क्वाड्रेंट में 5 दांत होते हैं, दैट उनको हमने नाम दिया ABCDE, ठीक है। डेसिडुअस दांत में प्री मोलर्स नहीं होते, ठीक है। तो ABCD एंड E, इसमें क्या होता है, प्री मोलर्स नहीं होते, क्या होता है, एक सेंट्रल साइजर, लेटरल साइजर, कैनाइन और 2 मोलर होते हैं, ठीक है। सेंट्रल साइजर A, लेटरल साइजर B, C कैनाइन और D और E फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल साइजर पहले आता है सॉरी, पहले सेंट्रल साइजर आता है, फिर लेटरल साइजर आता है, फिर कैनाइन आता है, उसके बाद हाँ जी, तो उसके बाद आता है फर्स्ट मोलर एंड देन आता है सेकंड मोलर। तो ये इस टाइप की सीक्वेंस होती है। और फिर क्या होता है, जो हमारी परमानेंट डेंटिशन की जो सीक्वेंस होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 होता है, 8 तक होता है। तो A को रिप्लेस करेगा 1, B को रिप्लेस करेगा 2, C को रिप्लेस करेगा 3, D को 4, E को 5 और फिर 6 7 8। सो इस तरीके से प्रॉपर चलता रहता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल पीरियड ऑफ टूथ एक्सचेंज। सो constant vigilance is essential during the critical period of tooth exchange. Dentists must be on the lookout for anything that might stand in the way of development of normal occlusion. Okay, abnormal resorption patterns, retained primary tooth fragments, supernumerary teeth, ankylosis of primary tooth, non-resorbing bony crypt, soft tissue barrier, etc. may upset the timetable at one time and another. इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मतलब कोई प्राइमरी रूट का फ्रैगमेंट कोई रिटेन रह गया, या फिर कोई सुपरनोमरी टीथ है, एनकाइलोसिस है, या फिर कोई नॉन रिजॉर्बिंग बोनी क्रिप्ट है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका जो टाइम टेबल है, मतलब एक दांत के बाद जो दूसरा आना है उसको अफेक्ट करेंगे। नाउ प्री मेच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस टूथ और ए ग्रुप ऑफ टीथ में लीड टू फॉलोइंग वाइड रेंज ऑफ इम्प्लीकेशंस। अगर प्री मेच्योर लॉस है, मतलब ये टाइम नहीं था इस दांत का लॉस होने का पर वो पहले ही हो गया, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पेस लॉस हो जाएगा, स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब स्पीच में क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप प्रॉपर नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर, साइकोलॉजिकल जैसे कि अगर जैसे जो बच्चा है उसको लगेगा कि मेरा मुंह थोड़ा अजीब दिखता है, डरावना दिखता है जब मैं खोलता हूँ, बिकॉज कुछ स्पेस, मतलब कहीं पे कोई स्पेस आ गया, कहीं पे कोई दांत निकल गया,
तो साइकोलॉजिकल उस पर मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैस्टिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ग्रोथ स्टिमुलेशन में भी प्रॉब्लम। ग्रोथ स्टिमुलेशन कैसे? क्योंकि जो दांत होता है उसकी वजह से जो एल्वियोलो बोन है उस पर, उसके नीचे उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर दांत नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। नाउ एनकालोस डेसिडस टीथ, दे इंटरफियर विद द इरप्शन ऑफ परमानेंट सक्सेसर। जो भी आपका डेसिडस दांत है उसके बाद जो नेक्स्ट परमानेंट वहाँ पे आने वाला है जो उसके नीचे है, तो ये उस चीज़ की इरप्शन में इंटरफेयर करता है। टिपिंग ऑफ एडजेसेंट टीथ, क्या होता है कि जो एडजेसेंट दांत होते हैं उसकी स्पेस में घुस जाते हैं, टिपिंग करते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ अपोजिट टीथ और लॉस ऑफ आर्च लेंथ। सो इसलिए एनकलोज्ड टूथ को रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ना मैनेजमेंट ऑफ एनकलोज्ड टूथ कैसे मैनेज करेंगे? ओके तो मैनेजमेंट ऑफ एनकलोज्ड टीथ हम कैसे करेंगे? दैट शुड नॉट बी रूटीनली एक्सट्रैक्टेड। बहुत ही अगर एक्सट्रीम केसेस अगर आते हैं तब आप उनको एक्सट्रैक्ट करिए, नहीं तो आप रूटीनली उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिकल। आप बार बार क्लिनिकल और रेडियोग्राफ्स लेते रहिए उस एरिया के, ताकि आपको पता चलता रहे। कैन सर्व एज अ गुड ऑर्थोडोंटिक एंकर्स, ये एक ऑर्थोडोंटिक एंकर्स की तरह सर्व कर सकते हैं। टेंडेंसी टू समझ, क्या होता है कि एडजेसेंट टीथ में टिल्ट ओवर एंकालोज टूथ, जो पास का टीथ है वो उसके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंटेड बाय रेस्टोरेशन ऑफ टूथ टू प्रॉपर हाइट बाय क्राउन। ठीक है, सो दैट इज द टेंडेंसी टू समझ। तो ये हमारी थी मैनेजमेंट ऑफ एंकालोज टूथ। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज केरीज कंट्रोल। तो अभी तक हमने बात करी पेरेंट की एजुकेशन, व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ deciduous teeth, what's their importance. Then we are going to discuss about caries control, that why we need to control the caries of deciduous teeth. So प्रॉपर ओरल हाइजीन शुड बी देयर, लाइक केरीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पिट एंड फिशर सीलेंस आप यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत अगर आई हुई हैं तो यू कैन यूज़ पिट फिशर सीलेंस। टॉपिकल और सिस्टमिक फ्लोराइड्स आप दीजिए। मैनेजमेंट ऑफ इंसिपिएंट एंड फ्रैंक केरियस लेशंस, अगर ऐसे कोई लेशंस होते हैं तो आप उनको मैनेज करिए। शुड बी रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल विदाउट डैमेज टू एडजेसेंट टीथ। अगर अब हम सुपरनुमरी टीथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कीरीज कंट्रोल हो गया। अब हम सुपरनुमरी की बात करें कि हमें उनको क्यों रिमूव करना चाहिए। तो सुपरनुमरी टीथ कैन कॉज डायस्टीमा। डायस्टीमा कॉज कर सकते हैं, रूट को रिजॉर्ब कर सकते हैं, माल फॉर्मेशन कर सकते हैं, डेविएटेड पाथ ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ, उनका जो पाथ है उसको डेविएट कर सकते हैं। इम्पैक्शन ऑफ परमानेंट टीथ, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, टेढ़ा हो सकता है वो। तो दैट्स वाई वी नीड टू रिमूव सुपरनुमरी। सुपरनुमरी टीथ का क्या मतलब होता है? जो आपकी आर्च में नॉर्मल से ज़्यादा दांत हो, तो दैट इज सुपरनुमरी। नाउ we are going to talk about maxillary label freedom attachment। ठीक है, लेबल फ्रीडम क्या होता है कि जो हमारे दो इंसाइजेस हैं उनके बीच में एक फ्रीडम होती है, उसको हम लेबल फ्रीडम बोलते हैं। अगर मैक्सिला की तो मैक्सिलरी, मैंडिबल की तो मैंडिबल। ठीक है, तो मैक्सिलरी लेबल फ्रीडम की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है वो एबनॉर्मली अटैच हो जाती है। क्या होता है कि लो अटैच्ड और थिक फ्रीनम में कॉज मिड लाइन डायस्थीमिया। तो उससे क्या होता है, फिगर में देख सकते हैं, एयर वहाँ पे कर्सर है, यू कैन सी दैट हाउ द maxillary label फ्रीनम गेट abnormally attached। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है? डायस्थीमिया हो सकता है। स्पेस मोर देन 2 mm between centers as unlikely to close spontaneously। ठीक है, बेस्ट अप्रोच इज टू वेट फॉर द परमानेंट कैनाइन्स टू erupt। सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है कि आप वेट करिए कि कब परमानेंट कैनाइन्स आएंगे, उसके बाद ऑब्जर्व करिए। फ्रेनेक्टॉमी बिफोर ट्रीटमेंट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फ्रेनेक्टॉमी आप मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट फ्रेनेक्टॉमी अटेम्प्टेड ओनली इफ कॉन्टिन्यूस टेंडेंसी फॉर रिलैप्स प्रेजेंट। तभी करनी होती है बिफोर ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट, तभी करनी होती है इफ द टेंडेंसी फॉर रिलैप्स, अगर रिलैप्स होने की टेंडेंसी हो जाए, बाद में फिर से गैप अगर बन जाए सेंट्रल थेसिस के बीच में, देन वी आर गोइंग टू डू फ्रेनेक्टॉमी। नाउ व्हाट इज एनकाइलोग्लॉसिया? एनकाइलोग्लॉसिया मीन्स टंग टाई। जो आपका टंग होता है आगे की तरफ का जो टिप होता है, अगर वो नीचे फ्लोर से जुड़ जाती है तो वो एनकाइलोग्लॉसिया हो जाता है। वी हैव ऑल्सो स्टडीड दिस टर्म इन आवर थर्ड ईयर। इट occurs due to short lingual फ्रीनम। जो हमारी लिंगुअल फ्रीनम होती है वो काफ़ी शॉर्ट अगर हो जाती है तो टंग टाई हो जाता है। इंटरफेयर्स विद स्पीच डेवलपमेंट एंड टंग पोस्चर एंड फंक्शन, इन तीनों चीज़ों को अफेक्ट करती है। सर्जिकल रिलीज इंडिकेटेड बाय
इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन नोटेड। सर्जिकली आप इसको ट्रीट करिए, और क्या होता है कि इसकी वजह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है। Then there is the prevention of deformation incidents by Milwaukee brace treatment. So I'll be discussing this in my another video. Along with this, I will be talking about space maintenance. So thank you for this, and if you like it and if you find this video a little bit helpful, then please give a thumbs up and do subscribe. Thank you.